Hello guys, after the discussion of rate law, molecularity and order, today I'm going to give you information, total possible information about integrated rate law. Now this is the advanced rate law to find out the speed of the reaction, and here the speed of the reaction is judged on the basis of the value of K. If the K value, if you remember in the last lecture I've discussed about the K value, if the K value is more, the reaction is fast. तो यहाँ पर हम लोग अभी K से K वैल्यू फाइंड करके ये जज करेंगे कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है, प्लस एट द सेम टाइम वी कैन इवेल्युएट हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग एंड हाउ मच अमाउंट इज रिएक्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम. इससे पहले जितने भी हम लोग ने मेथड्स देखे, दो मेथड्स देखे रेट फाइंड करने के लिए. द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द रेट वाज रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, वेयर यू फाइंड रेट एट अ टाइम इंटरवल, नॉट एट अ पर्टिकुलर टाइम बट अ स्मॉल टाइम इंटरवल. T2 माइनस T1 पे आप रेट फाइंड करते, बट एग्जैक्ट टाइम के नहीं कर रहे थे कि व्हाट इज द रेट एट एग्जैक्ट टाइम. तो दिस विल, द इंटीग्रेटेड रेट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एट एग्जैक्ट टाइम, प्लस दे ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जो हम लोग को एग्जैक्ट टाइम पे कैलकुलेशन नहीं दे रहा था. और जो सेकेंड मेथड था रेट लॉ का, रेट इज इक्वल टू के मोलार कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन, वे एन स्टैंड्स फॉर व्हाट ऑर्डर. इसके अंदर हम लोगों को इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं था. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ न्यू या एडवांस रेट लॉ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन at a particular time in relation to the initial and the final concentration of the reactant, and that law will be called as integrated rate law. Okay, for zero order the equation will be different, for first order the equation will be different, for second order the equation will be different. So for every order reaction you have a separate equation to calculate the speed. आप उसी रिएक्शन को वही ऑर्डर के ऊपर, मतलब फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम प्लैटिनियम, तो इसके ऊपर आप फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे टू फाइंड द स्पीड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड द इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. नो, decomposition of ammonium and platinum is a clear case of zero order reaction. So in case of zero order reaction you apply the formula of zero order. So now we will derive the integrated rate law for zero order as well as for first order, और आपको मैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के भी दे दूंगा. बट डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इज देयर इन योर HSC, इट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो हमको करना चाहिए. JEE के लिए, नीट के लिए यू रिक्वायर सर्टेन एक्स्ट्रा नॉलेज दैट विल गिव यू आफ्टर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. अगर एक आपको समझ में आ गया, सपोज यू अंडरस्टूड जीरो ऑर्डर प्रॉपरली, फर्स्ट ऑर्डर उसी को ही फॉलो करता है उसी तरीके से. ओके, तो जस्ट फोकस ऑन इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द integrated rate law, which gives a relationship between rate constant K, time A naught, which is the initial concentration of the reactant, and AT, which is the final concentration at time t. ये सबका रिलेशन होगा. ओके, इसमें सबसे पहले वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड लॉ. तो लेट अस कंसिडर, लेट अस अज्यूम a zero order reaction. Let us assume a zero order reaction. A gives a product P. Now this is a zero order reaction. Now according to differential rate equation we can write down that rate of the reaction is equal to minus D concentration of A upon dt. First method, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ. Then second method say rate is equal to K molar concentration of A raised to order, the order is 0, that will be equal to K, anything raised to 0 is 1. This is your second equation. Clear? From this two equation can we frame from 1 and 2, can we frame that minus D concentration of A upon dt is equal to K. Okay, or it can also be written as that D concentration of A is equal to minus K into dt. Now
let A naught be the initial concentration of the reactant when time is equal to 0 and AT is the final concentration of the reactant when time is equal to T. ये हम लोग ने assume कर लिया and we got this equation. Now we have two limits, initial and final concentration. Suppose आपने reactant लिया था 5 ग्राम का तो वो initial concentration हो गया. After certain time, समझो time 10 minutes है तो after 10 minutes वो amount बच गया 3 ग्राम. तो when time was 0 your initial concentration was 5 gram. When the time was 10 minutes your final concentration AT is the final concentration. Okay, the amount remaining is 3 gram. तो हमारे पास दो रेंज आ गए 5 ग्राम से 3 ग्राम तक. टाइम आ गया 10 मिनट्स के लिए. So what we will do, now we have two limits, the initial concentration and final concentration. तो आप 5 ग्राम से 3 ग्राम के लिए हर एक मिलीग्राम का इक्वेशन नहीं निकालोगे. What you will do, हर एक मिलीग्राम का आप इक्वेशन नहीं निकालोगे. So what you will do, you will club them together, you will integrate them together. Okay, so now similarly this equation dA is equal to minus k dt, it is been integrated. The integration of dA between two limits. The first limit is A naught, the limit AT. Similarly minus k is a constant, integration of dt, two limits 0 to t. Now according to integration, law of integration, that integration of dx is equal to x. इसका मतलब integration of dA is nothing but molar concentration of A, but it has two limit. One is A naught and second is what, AT, is equal to minus k. Integration of dt is t. Again फिर two limits. कौन से दो लिमिट हो गए? That is nothing but 0 to t. दो लिमिट हो गया. Now when you open this, you will always write down final minus initial. So AT is the final amount, A naught is the initial amount. So when you write down, you will write down as AT minus A naught is equal to minus k t minus 0. Then when you interchange the side, you can write down that kt is equal to, अब minus A naught से plus A naught हो जाएगा and plus AT से minus AT हो जाएगा. So you get one equation. Now this equation is written as k is equal to A naught minus AT upon T. So this is your integrated Ratic law. Rate law. For which order? For zero order, where the rate of the reaction do not depend upon the concentration of the reactant. आपको याद होगा external factor use होता है इसके अंदर. For example आपने for example decomposition of ammonia हम लोग ने platinum में देखा था. Ammonia decompose हो रहा है on the surface of platinum. When you heat it, it forms N2 plus 3H2 decomposition. H2 plus Cl2 in the presence of UV light to form HCl. Zero order reaction. External influence आ गया इसके अंदर. फिर NO2 को आप डिकम्पोज करो, NO2 get decomposed in presence of platinum. When you heat it, it forms N2 plus 2O2. So such type of decomposition, such type of reaction where there is external factor used, it is a zero order reaction, and for that this is the integrated rate law where A naught is the initial amount. हमको याद रखने का हमेशा कि A naught is the initial amount of reactant. Initial reactant when time is 0, and AT is the final amount of reactant when the time is t, the amount remaining. याद रखना AT is the amount remaining, जो बच गया है amount reactant. It's only all about reactants. Okay, now suppose in this equation if we write down if A naught is A and X is the amount reacted, मतलब X amount react हो गया. So therefore कितना amount बचा है, तो A is the initial amount, X react हो गया तो बचा कितना, A minus X, it is the amount remaining. So if I substitute A minus X, we can write down, therefore we can write down that K is equal to, चलो या KT is equal to A naught की जगह पे write down A minus
अमाउंट रिमेनिंग इज a माइनस एक्स, क्योंकि AT की जगह पे a माइनस एक्स आ जाएगा. देन a and a get cancel out, so you will get only x. So we write down that k is equal to x upon t. So what you can note down from here, that the rate of the reaction is independent of concentration of the reactant. देखो speed, k से भी आप speed निकाल सकते हो, तो we can write down k, the speed or the rate, that is the k value, is independent of concentration of reactant. मतलब reactant से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So because क्यों नहीं पड़ रहा, ऑब्वियस बात है, because these reactions have been carried out by using an external factor. So reaction से कोई reactant के concentration से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जितना आप external factor डालोगे उतना ही reaction चलेगा. इसका मतलब ये है कि the time of completion of zero order reaction is finite. सिर्फ जीरो ऑर्डर का टाइम फाइनाइट होता है, क्योंकि वो हमको पता होता है. वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज दैट रिएक्शन इज नॉट कैरिड आउट बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो आप जितना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऐड करोगे सिस्टम में, रिएक्शन उतना ही चलेगा. देयरफॉर आपको पता है कि रिएक्शन कितना देर तक कैरी आउट करना है, क्योंकि वो रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है. The reaction is been carried out by the external influence, not because of the reactant, either because of certain external energy like catalyst आपने अप्लाई किया है, या हीट अप्लाई किया है, या लाइट अप्लाई किया है. So that reaction is zero order reaction where it is based on the external influence. So वहाँ पर उस reaction के अंदर the time of completion is finite. बाकी जितने भी order reaction है सबका time of completion infinite होता है. मतलब हम उनका time of completion predict नहीं कर सकते. Like first order टाइम ऑफ कंप्लीशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सेकेंड ऑर्डर टाइम ऑफ कंप्लीशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट की वजह से नहीं होता है. इट इज कंट्रोल एक्सटर्नली, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चाहिए इसके अंदर. ओके, सो दिस टू इक्वेशंस आर द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर. तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या इक्वेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय टी हाफ. नाउ व्हाट इज दिस हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस. इट इज द टाइम टेकन बाय द substance, that is a reactant, to reduce half of its ओरिजिनल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 ग्राम का रिएक्टेंट लिया, इन 2 मिनट्स वो 5 ग्राम हो गया, तो 2 मिनट्स उसका हाफ लाइफ होगा. सिंपल. इट्स अ टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. जितना आपने ओरिजिनल अमाउंट लिया है उसका हाफ डिकम्पोज हो गया, रिएक्ट हो गया, कंज्यूम हो गया, तो उस पे जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ. सो इफ आई टेक अ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, वो 5 ग्राम हो गया आफ्टर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स उसका हाफ लाइफ हो गया. सो अगले 2 मिनट्स में, द नेक्स्ट 2 मिनट्स वो 5 से 2.5 हो जाएगा. क्लियर है? इन नेक्स्ट 2 मिनट्स वो 2.5 से 1.25 हो जाएगा. देन नेक्स्ट 2 मिनट्स वो 1.25 से 0.625 हो जाएगा. दिस इज हाउ it will going to reduce half of its original amount every after 2 minutes, every after half life. मतलब अगर आपने 100 ग्राम लिया है और सपोज किसी सब्सटेंस का हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में वो 50 ग्राम हो जाएगा. फिर अगले 10 मिनट्स में इट विल बी 25 ग्राम, फिर अगेन 10 मिनट्स इट विल बी 12.5 ग्राम. ओके, दिस इज हाउ इट गोइंग टू रिड्यूस. वो कम होता रहेगा, बट बाय 50% ऑफ इज ओरिजिनल अमाउंट एवरी आफ्टर हाफ लाइफ, जो हम लोगों ने 10 मिनट अज्यूम किया था. सो हाफ लाइफ इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. अब इसका इक्वेशन निकालना है फॉर जीरो ऑर्डर के. जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा? सो वी कैन राइट डाउन कि अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज दैट के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी. नाउ व्हेन T becomes T half, मतलब टाइम आपका हाफ लाइफ हो गया, देन AT अमाउंट रिमेनिंग कितना हो जाएगा? ओरिजिनल अमाउंट का हाफ. तो ओरिजिनल अमाउंट क्या था? A नॉट. सो द अमाउंट रिमेनिंग AT विल बी A नॉट बाई 2.
मतलब आपने 100 ग्राम लिया तो फर्स्ट हाफ लाइफ में वो 50 ग्राम हो गया, 100/2 हो गया. सो व्हेन t becomes t half, at becomes a0/2. तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू विल गेट k t half इज इक्वल टू a0 माइनस, अब at की जगह पे क्या हो जाएगा, a0/2. तो 1 माइनस हाफ इज नथिंग बट हाफ, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पॉजिटिव a0/2. सो नाउ t हाफ विल बी इक्वल टू a0/2k. तो ये इक्वेशन क्या प्रूफ करता है, ये इक्वेशन ये प्रूफ करता है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, is directly proportional to initial concentration, but the speed, the rate of the reaction is independent of the initial concentration of the reactant. Okay, it's independent of initial concentration या concentration of the reactant, but half life is directly proportional to the initial concentration of reactant. For which order? For zero order reaction. Clear है? अच्छा, K का यूनिट निकालना है. What will be the unit of K? सिंपल है, यूनिट ऑफ के लिए आप देखोगे बराबर से, तो k इज नथिंग बट व्हाट, हियर इन दिस केस इट इज x अपॉन टी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए k इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए लोग मोलार यूज़ करते हैं, टाइम के लिए पर सेकेंड यूज़ करते हैं. दिस इज सिमिलर टू द, मैंने बताया था, यूनिट ऑफ रेट, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा. सो दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, k इज इक्वल टू a0 माइनस et अपॉन टी. के से आप स्पीड फाइंड कर सकते हो एट एनी टाइम, मतलब अभी आपको dt की ज़रूरत नहीं है. एट एनी टाइम यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, एंड एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग. आपको इनिशियल तो पता रहेगा बिकॉज यू एड अ सर्टेन अमाउंट. आपने 12 ग्राम, 13 ग्राम, 15 ग्राम लिया है इनिशियल सपोज, सो a0 विल बी 15 ग्राम. 10 मिनट्स के बाद में इफ यू नो द वैल्यू ऑफ k, यू कैन जस्ट द वैल्यू ऑफ 80. Similarly, you can also find out the half-life for a zero-order reaction, which depends upon the initial concentration of the reactant. याद रखना, अगर initial concentration, किसी न्यूमेरिकल में initial concentration change होने पर half-life change होता है, तो वो zero order है. वो भी कैसा बढ़ना चाहिए. 10 ग्राम लिया, half-life 3 minutes है सपोज. 20 ग्राम ले रहा, हाफ लाइफ 6 मिनट्स आ रहा. लाइक दैट इट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो दैट न्यूमेरिकल इज ऑफ जीरो ऑर्डर. ठीक है, तो टी हाफ एंड हाफ लाइफ विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर. अब जीरो ऑर्डर के हम लोग ग्राफ्स देख लेंगे, तो आई विल रब दिस पार्ट आउट. ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. द फर्स्ट ग्राफ, अच्छा ग्राफ समझने के लिए जस्ट रिमेंबर अ शॉर्टकट, हम लोग जो भी ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. फर्स्ट वैल्यू y के लिए मैं लिखूंगा, सेकेंड वैल्यू x के लिए लिखूंगा. ओके, नाउ इसमें एक रूल याद रखने का, इफ़ m इज पॉजिटिव, c इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ आपका ओरिजिन से चालू होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा. तो इफ़ स्लोप इज नेगेटिव, ओके, या स्लोप पॉजिटिव है एंड सी नॉट इक्वल टू 0 है, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इंटरसेप्ट एट दी वाई एक्सिस. और अगर स्लोप नेगेटिव है एंड सी नॉट इक्वल टू 0 है, सो द ग्राफ विल बी इन द डिक्रीजिंग मैनर वेयर द स्लोप इज नेगेटिव. ओके, सो ये तीन टाइप ही आपको दिखाई देंगे ग्राफ के अंदर. द फर्स्ट टाइप हम लोग फर्स्ट ग्राफ ले लेते हैं. द फर्स्ट ग्राफ इज rate versus A, the concentration of the reactant. Now we know that in case of a zero order reaction, the rate of the reaction does not depend upon the concentration of the reactant, वो तो external factor पे depend करता है. So from the rate law, if you remember, rate is equal to K molar concentration of A raised to 0. zero order हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K प्लस, यहाँ पर मैं 0 लिख दिया तो चलेगा, मतलब इसी इक्वेशन में अगर प्लस 0 लिखा तो नॉट अ प्रॉब्लम. ये रेट लॉ के हिसाब से आ रहा है.
प्लस जीरो मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन में, सो इट इज़ रिटन एज के प्लस जीरो। सो ये हो गया y। फिर उसके बाद में एम एक्स प्लस सी की हम लोग बात करेंगे तो एक्स फैक्टर जो है वहाँ पर जीरो हो गया है। तो इफ़ दिस पार्ट इज जीरो इट क्लियरली इंडिकेट दैट रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ और रेट को वाई एक्सिस पे लिया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू वाई एक्सिस पे आएगी और सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स एक्सिस पे होगा, तो ए तो कॉन्स्टेंट रह रहा है थ्रू आउट, ए इज कॉन्स्टेंट, डज नॉट हैव अ इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, नाउ सेकेंड ग्राफ इज 80 वर्सेस टी, मतलब अभी y एक्सिस पे आप 80 को यूज करोगे और 80 इज द अमाउंट रिमेनिंग और x किस पे आएगा, t पे आएगा। तो हम लोगों को हर ग्राफ कौन से फॉर्म में लेके आना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर इंटीग्रेटेड इक्वेशन इज के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, विच कैन ऑल्सो भी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टी को अगर एक साइड ले लिया, ए टी विल बी इक्वल टू के टी कम्स टू द राइट हैंड साइड, तो माइनस के टी प्लस ए नॉट। नाउ सी दिस इज ऑन वाई एक्सिस, टाइम किस पे होना चाहिए, x, तो ये फिर m हो गया और ये क्या हो गया, c। बराबर देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, बट स्लोप इज नेगेटिव। तो व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इट, तो ए टी आ जाएगा y एक्सिस पे, टाइम आ गया x पे। नाउ स्लोप इज नेगेटिव तो डिक्रीजिंग है, this y intercept becomes a naught, the initial concentration, and here the slope becomes minus k. Simple है, decreasing format, this one. Okay, now third graph is a naught minus at versus t. So we know the integration equation directly that a naught minus at इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो लिख दिया, तो ये y हो गया एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना। स्लोप पॉजिटिव है, सी जीरो है, सो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, यहाँ पर आ जाएगा ए नॉट माइनस ए टी, योर इट विल बी एक्स पे आ जाएगा टाइम, स्लोप इज पॉजिटिव, सी जीरो, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ का जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू के। एंड द फोर्थ ग्राफ इज फॉर द हाफ लाइफ, the fourth graph is for the half life equation, that is t half versus a naught initial concentration। so आपने अभी देखा था, मैंने इक्वेशन निकाला था हाफ लाइफ के लिए, that t half is equal to a naught upon 2k। so मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, t half is equal to 1 upon 2k into a naught, okay, plus 0। why? because now it fits into the equation y is equal to mx plus c। तो स्लोप 1/2k है, x पे आपने a नॉट यूज़ करना है, y एक्सिस पे t हाफ यूज़ करना है। सो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, इन दिस ग्राफ t हाफ कम्स ऑन द y एक्सिस, a नॉट मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट ऑन x एक्सिस, सिंस c इज जीरो, स्लोप पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ। नाउ द स्लोप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2k। तो रिमेंबर दिस 4 ग्राफ, यही 4 ग्राफ में रिपीट करूँगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, बट इंस्टेड ऑफ 80 यू विल राइट डाउन log to the base 10 ऑफ 80, सिर्फ लॉगैरिथम आ जाएगा उसके अंदर, रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम, एवरी पार्ट विल बी द सेम। सो दीज आर द ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर एंड आई हैव कंप्लीटेड एंटायर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है सब लोगों को। So I'll rub this out.